Hello everyone, I'm Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to compare consumer theory and producer theory with respect to constraint optimization. Okay, so start करते हैं इसको. So first I'm drawing a straight line. Okay, so here it's consumer theory and a producer theory. So we are doing this comparison based on constraint optimization. Okay. So in case of consumer theory, we have MRS. Okay. MRS XY. इसका definition क्या होता है? The rate of sacrifice of Y to get additional one unit of good X. ओके कंज्यूमर थियरी में हमारे पास क्या होता है एमआरएस जो क्या बताता है रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई टू गेट एन एडिशनल वन यूनिट ऑफ गुड एक्स. ओके सिमिलरली प्रोड्यूसर थियरी में हमारे पास होता है ऑन द सेम लाइंस एमआरटीएस एलके. ओके जो क्या बताता है द रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ कैपिटल input to employ one additional unit of labor input. Additional unit of labor input. Okay. So MRTSL के क्या पता था the rate of sacrifice of capital input to employ one additional unit of labor. That means आपको अगर एक additional labor का consumption बढ़ाना है that means अगर आपको एक labor extra employ करना है तो उसके लिए आपको कितना जो है sacrifice करना पड़ेगा capital input का such that output remain constant. Output remain constant. यहाँ पे क्या होता है such that level of utility or satisfaction remain constant. Level of satisfaction or utility remain constant. ओके कंज्यूमर थियरी में हमारे पास क्या होता है टू डायमेंशनल सिनेरियो में टू गुड्स होते हैं. ओके वी हैव टू गुड्स गुड एक्स एंड गुड वाई. यहाँ पे क्या होता है टू गुड्स एक्स एंड वाई. यहाँ हमारे पास होता है टू इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल. ओके एमआरएस क्या बताता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. एमआरटीएसएल के क्या बताता है स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट. इसे किस तरीके से रिपीट करते हैं एम आर एस एक्स वाई इक्वल्स टू डेल वाई वाई डेल एक्स. इसे किस तरीके से शो करते हैं एम आर टी एस एल के डेल के बाई डेल एल. ओके एंड अदर वे अराउंड क्या है एम आर एस इज ऑल्सो इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. एंड यहाँ पे क्या होता है एम आर टी एस एल के इज इक्वल्स टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी with respect to labor and capital. So these are the similarities.
ओके, इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है? इंडिफरेंस कर्व आईसी, इट्स एन graphical representation, graphical representation, graphical representation for the various combination of good x and y that will result in same same level of satisfaction or utility. जिसका मतलब ये होता है along an indifference curve आप किसी भी पॉइंट पर कंज्यूम करो with the different ratios, different combination of good x and y will give you the same level of satisfaction. Okay, different bundles of good x and y will give you the same level of satisfaction. Okay, ग्राफिकली देखते हैं एक बार इसको. Sorry. So graphically it will look like this. In case of normal goods, your indifference curve is downward sloping, convex to the origin. You will get rectangular hyperbola in case of normal goods, when good x and y are normal goods. Okay, normal goods. जब x and y क्या है, normal goods है, तो you will get this rectangular hyperbola. इस तरीके जो कर्व आता है उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एज वेल एज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ओके, एंड इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या रहती है? ऑन वेरियस कॉम्बिनेशंस will give the same level of satisfaction. And difference curve is all about utility. So along this curve your utility remains constant. आप इस point पे consume करो या इस point पे consume करो या इस पे. These points will give you different combinations of good x and y like this. At this point आप y ज्यादा consume कर रहे हो, right? And x कम consume कर रहे हो. And sorry. Okay. And on this point B, आप क्या कर रहे हो? कंपैरेटिवली कम y कंज्यूम कर रहे हो एंड x ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो. एंड ऑन पॉइंट सी आप x ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो एंड y बहुत कम कंज्यूम कर रहे हो, राइट? तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं फॉर गुड x एंड गुड y, बट यू आर गेटिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. योर यूटिलिटी एट पॉइंट A, your utility at point B and your utility at point C remain constant. Okay, so that's why it is called indifference curve. Okay, on horizontal axis आप good x लेते हो और vertical axis आप good y लेते हो. ठीक है. Now in case of reducer theory we have IQ, isocont. Okay, isocont क्या बताता है? Isocont क्या है? It's an graphical representation for the various combination of labor and capital input. Labor and capital are the input that will give you the output. Okay, that will result in same level of output. ओके, दैट मीन्स आप लेबर एंड कैपिटल जो दो इनपुट्स हैं आप उनका अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करोगे, बट उस कॉम्बिनेशन से आपको जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम रहेगा. ओके, सो आप इसे इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो.
In this case as well, you will get this rectangular hyperbola isocont. Q से denote करते हैं उसको, Q. Okay, your output will remain constant at various combination of labor and capital. On y axis capital लेते हो, on horizontal axis labor. Okay, so like point A, B and C, on every point on this curve you will get the same level of output. आपका आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ पे अगर आप ए पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है. एंड सी पॉइंट पे क्या है, लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है. these are different combinations. Okay, एंड लाइक ये है, यहाँ पे लेट्स से आप कैपिटल और लेबर दोनों इक्वल अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हो, बट ऑल दीज पॉइंट्स आप चाहे ए पे कंज्यूम करो, सॉरी ए पे प्रोड्यूस करो या बी पे प्रोड्यूस करो या सी पे प्रोड्यूस करो, आपका लेवल ऑफ आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, सो अलोंग दिस कर्व, अलोंग दिस आइसोकॉन्ट आपका लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहेगा. आइसो का मतलब होता है सेम, कॉन्ट मतलब आउटपुट. Okay, so along this curve, with different combination of labor and capital will give you the same level of output. Okay. Now, what we are left with? In this case, in case of consumer theory, we have utility functions, where utility is a function of x and y. That is, यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन आपको कब मिलता है, जब आप कंज्यूम करते हो. तो एक्स एंड वाई आर द टू गुड्स. व्हेन यू कंज्यूम दीज टू गुड्स you will get satisfaction out of that. So your utility level of satisfaction is a function of good x and y. Okay, in case of producer theory we have production function, where output is a function of labor and capital, right? Where when you employ labor and capital input you will get output. Okay, जब आप लेबर एंड कैपिटल एम्प्लॉय करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, वो आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे. देन आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, ऑन लेबर एंड कैपिटल. ओके, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन. फर्स्ट, कॉपडोगलस यूटिलिटी फंक्शन. ओके, इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं, that u is equals to x alpha by beta. Alpha and beta are the parameters, okay, that will show the individual share of x and y into the total utility. Okay, where alpha depict the share of good x in total utility, where beta is the share of good y in total utility. और आप इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर एक यूनिट से आप चेंज करते हो गुड एक्स में, दैट विल रिजल्ट इन अल्फा यूनिट चेंज इन योर यूटिलिटी. एंड अगर आप y में एक यूनिट से चेंज करते हो तो दैट विल रिजल्ट इन बीटा यूनिट चेंज इन योर यूटिलिटी. ओके, हियर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. फर्स्ट, कॉपडोगलस प्रोडक्शन फंक्शन. जिसे कैसे दिखाते हैं, Q is equals to L alpha K beta. L and K are the labor and capital. Alpha and beta are the parameters. Alpha depicts the share of labor in total output produced. While beta depicts the share of capital in total output produced. Okay.
Second type of utility function is linear utility function, where good x and y are perfect substitutes and the marginal utility of both the goods remain constant. Okay, so it's like u is equals to a x plus b by. Okay, so in this case, good x and y are substitutes, perfect substitutes. In case of Cobb-Douglas utility function, good x and y are normal goods. Okay. ओके, जिस केस आपका इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से आता है? इंडिफरेंस कर्व कैसा रहता है? स्ट्रेट लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग ओके। एंड कॉब्युलर यूटिलिटी फंक्शन में आपका आईसी कैसा रहता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज बोथ द गुड्स आर नॉर्मल गुड्स। ओके, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, जैसा अभी हम लोगों ने बनाया था इस तरीके से। ओके, यहाँ पे किस तरीके से रहता है? इस तरीके से। ये आपका आईसी है। And similarly, in case of production function, in case of Cobb-Douglas production function, आपका आइसोकॉन का शेप किस तरीके से तरह है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, and we have linear production function, linear production function, जिसे कैसे डिनोट करते हैं? Q is equal to A L plus B K. A and B are the parameters. Okay, or A and B here also depicts, here A and B depicts the marginal productivity with respect to labor and capital. Okay, marginal productivity आप इस तरीके से लिख सकते हो। A is the marginal productivity of labor and B is the marginal productivity of capital. ये कैसे आता है? MPL क्या होता है? MPL is the partial derivative of Q with respect to labor, right? तो अब इसको Q L के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, you will left out with A. And similarly MP का क्या होता है? MPK is the partial derivative of Q with respect to A capital, तो आप K के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, you will get B. So A and B represents the marginal productivity of labor and capital respectively. Okay, and on the similar lines here, A depicts the marginal utility of X and B depicts the marginal utility of Y. Because what is marginal utility of X? Del U by del X. And similarly here del U by del Y. Okay, so these are the similarities. And in case of production function, you will get again a straight line downward sloping isocont. Now third one, we have fixed proportion or Leontief utility function, where इसे किस तरीके से Leontief reduction function को आप किस तरह से u min of ax b by, ओके, इसको इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? गुड x and y are perfect complements, perfect complements. That means both goods are used in a fixed proportion. Both goods are consumed in a fixed ratio. Okay. And in case of production function, we also have fixed proportion or Leontief production function. Okay. इसे कैसे डिनोट करते हैं? Q is equal to minimum of AL BK. Okay. यहाँ पे क्या है? लेबर एंड कैपिटल आर यूज्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. लेबर एंड कैपिटल
ये अगेन ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और दोनों क्या होते हैं? बोथ एल एंड के, बोथ इनपुट्स आर एम्प्लॉयड इन फिक्स्ड रेशियो। ओके, इस केस में आपके क्या जो हाँ, आइसोकॉन किस तरीके से बनता है? एल शेप्ड डिफरेंस कर, सॉरी आईक्यू, आइसोकॉन्ट आपका आइसोकॉन्ट कैसे रहेगा? एल शेप्ड। इन केस ऑफ कंज्यूमर थियोरी, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आपका आईसी किस तरीके से होता है? एल शेप्ड। जिसे आप आईसी इस तरीके से एल शेप्ड। Okay, now we have fourth type of utility function, quasi-linear utility function. Okay, quasi-linear utility function को किस तरीके से दिखाते हैं? u log x plus y और u x plus log y। तो यहाँ पे quasi-linear क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका एक गुण जो है नॉन लीनियर है, एक गुण जो है लीनियर है। यहाँ log x ये नॉन लीनियर है, y जो है लीनियर है। सेकंड वाले में x जो है लीनियर है, log y जो है नॉन लीनियर है। ओके, नॉन लीनियर का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप स्कूल का कंजम्पशन बढ़ाओगे, यूटिलिटी जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी। बट इन केस ऑफ लीनियर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। विद द फर्दर आप कितना भी कंज्यूम करो, आपकी यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, एंड इन केस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वी हैव क्वासी लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। इसे कैसे डिपिक्ट करते हैं? Q इज इक्वल टू लॉग L प्लस K और Q इज इक्वल टू L प्लस लॉग K। ओके, इन केस इनके सब यूटिलिटी फंक्शन आपको किस तरीके से कर्व मिलता है? कुछ इस तरीके से। आपका आईसी कुछ इस तरीके से होता है, एंड हियर आपका आइसोकॉन्ट भी इस तरीके से होगा, आइसोकॉन्ट। ओके, शेप ऑफ आइसोकॉन्ट। एंड नाउ वी हैव, इन सारे टॉपिक्स में मैंने इंडिविजुअली दो दो तीन तीन वीडियो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, और वीडियो बना के रखी हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं समरी कर रही हूँ बस, जिससे कि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे, आपको दोनों थियोरी अच्छे से समझ में आए। ये फिफ्थ PES यूटिलिटी फंक्शन। ओके, जैसे किस तरीके से दिखाते हैं? u इज इक्वल्स टू एल रो, सॉरी एक्स रो प्लस वाई रो 1 y रो। ओके, पी यूटिलिटी फंक्शन आप इस तरीके से दिखाते हो, जहां पे रो क्या है? सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है। एंड इन केस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन वी है CES प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे किस तरीके से दिखाते हैं? Q इज इक्वल्स टू एल रो प्लस K रो 1 y रो। ओके, यहाँ पे अगेन रो जो है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है। नाउ वील लुक फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कंज्यूमर की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है फॉर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर के केस में इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है? एट द टेंजेंसी पॉइंट बिटवीन योर बजट लाइन एंड द इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द बजट लाइन, देन विल टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर के केस में क्या होता है? बजट फंक्शन और बजट इक्वेशन, जहाँ पे आपकी टोटल इनकम होती है एंड आपका प्राइस ऑफ x इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई। तो ये राइट हैंड साइड में m बताता है आपका इनकम, ये बताता है आपका एक्सपेंडिचर। ओके,
तो आपका बजट फंक्शन कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे हमारा होता है आइसो कॉस्ट फंक्शन, आइसो कॉस्ट फंक्शन, ओके। जहाँ पे सी इज द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट किसका फंक्शन होता है, प्राइस ऑफ लेबर इनटू लेबर। तो प्राइस ऑफ लेबर क्या होता है, वेजेस इनटू एल, एंड प्राइस ऑफ कैपिटल क्या होता है, रेंट इनटू कैपिटल, ओके। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट, एंड ये आपका क्या है, एक्सपेंडिचर। कि जब आप कैपिटल एम्प्लॉय करोगे, लेबर एम्प्लॉय करोगे, तो आपको उनको वेजेस देना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, तो वो क्या, टोटल कॉस्ट हो गया, राइट। तो ये आपका है कॉस्ट फंक्शन। आईसो का मतलब सेम, कॉस्ट मतलब, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ही रहता है। तो ये किस तरीके से बनता है, ये लीनियर फंक्शन है, प्लस में दिख रहा है, लीनियर फंक्शन है। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करोगे तो यू विल गेट लाइक दिस, यू विल गेट फंक्शन लाइक दिस, ओके। सो ये है आपका बजट लाइन, बजट लाइन, ये है आपका आइसो कॉस्ट लाइन, ओके। तो इसके एवरी पॉइंट पे आप विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विल गिव यू द सेम कॉस्ट। यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई विल गिव यू द सेम एक्सपेंडिचर, सेम इनकम, ओके। ये पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए बी, लेबर है यहाँ पे, यहाँ कैपिटल है, यहाँ एक्स वाई। तो पॉइंट ए क्या बता रहा है कि आप जो है एक्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बजट फंक्शन में एक्स का जीरो रखोगे तो आपको वाई के टर्म्स में इक्वेशन क्या मिलेगी, एम बाई पी वाई, m by py. On v on point b you have m by px, okay. सिमिलरली यहाँ पॉइंट ए पे क्या है, आप लेबर को कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो लेबर वाला टर्म ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो आप कैपिटल के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सी वाई आर। तो आप कितना टोटल कैपिटल कंज्यूम करोगे या एम्प्लॉय करोगे, वो किसके इक्वल होगा, सी वाई आर के। एट पॉइंट बी ये हो जाएगा सी वाई डब्ल्यू, ओके। अभी देखते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। So, the necessary condition for consumer's equilibrium requires the tangency between budget line and indifference curve. Okay, तो slope of budget line क्या होता है, प्राइस रेशियो, प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, ओके। मैं यहाँ एक बार लिख भी देती हूँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डेल वाई बाई डेल एक्स, ओके, जो किसके इक्वल होता है, प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। एंड यहाँ स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन किसके इक्वल होता है, डेल के बाई डेल एल, जो किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू बाई आर। प्राइस ऑफ लेबर क्या है, डब्ल्यू, प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, आर, ओके। सो स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस रेशियो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एम आर एस। तो एट इक्विलिब्रियम एम आर एस which is equals to the ratio of marginal utility must equals to price ratio. Okay, so this is the necessary condition for consumer's equilibrium. And for producer equilibrium, you need a tangency between isocost line and isocont. Okay, slope of isocont क्या होता है, MRTS LK, slope of isocont MRTS LK, जो किसके इक्वल होता है, रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड कैपिटल। एंड आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप क्या होता है, डब्ल्यू बाई आर, ओके। सो एट इक्विलिब्रियम you will have to satisfy this condition, okay. and equilibrium सिचुएशन दो होती हैं, पहला सिचुएशन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन,
given the budget constraint. Okay, that you have to maximize the utility given your income and prices. Okay, फर्स्ट सिचुएशन ये है, तो इसको आप ग्राफिकली कैसे डिपिक्ट करोगे? यहाँ पे क्या है, आपका बजट कंस्ट्रेंट गिवन है, तो यू हैव बीन गिवन दिस बजट कंस्ट्रेंट, कि आपका ये बजट कंस्ट्रेंट गिवन है, तो आपको वो इंडिफरेंस कर्व चूज करना है जिसपे कि आपकी जो यूटिलिटी है मैक्सिमाइज हो रही है. लाइक यू हैव डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स, बट आपको वो चूज करना है जिसपे आपकी जो यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रही है. ओके, आपके पास डिफरेंट कर्व से 1 2 3 4, ये है आईसी. तो आपने कौन सा चूज करना है? आईसी जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, द टेंजेंसी बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, एंड जो गिवन ऑल ऑप्शंस हायर भी हो. ओके, तो 4 ऑप्शन में थर्ड वाला आईसी है जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको ये इक्विलिब्रियम चूज करना है. तो यहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम आएगा वो ये सेम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो. ओके, एंड इस पॉइंट पे कंज्यूमर की यूटिलिटी जो है मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम यूटिलिटी गिवन income and prices. Okay, and in case of producer theory you have output maximization given the cost constraint. ओके, तो इसको आप कैसे डिपिक्ट करोगे? यूजिंग ग्राफ. तो यहाँ पे आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन गिवन है कि आपकी टोटल कॉस्ट इतनी है, लाइक दिस. आपको चूज करना है कि गिवन द कॉस्ट आपको अपना आउटपुट जो है मैक्सिमाइज करना है. ओके, you have different option, you have to choose that one that satisfy your equilibrium condition. Okay, these are your isocon like Q1 Q2 Q3 Q4. तो Q3 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? स्लोप ऑफ आईसी मस्ट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट मस्ट इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन. ओके, तो ये है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन वाला सिनेरियो, ये है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन वाला सिनेरियो. ना आपके पास सेकंड सिनेरियो है एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन. ओके, एक्सपेंडिचर minimization. Given level of satisfaction. आप यूटिलिटी लिखो, गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी. आपको अपना एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना है फॉर द गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी. ओके, तो इसको आप ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करोगे? आपकी लेवल ऑफ यूटिलिटी गिवन है. ओके, कि आपको इतना यूटिलिटी चाहिए, इंडिफरेंस कर. ओके, आपको चूज करना है वो बजट लाइन जो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई करे. तो यू हैव डिफरेंट बजट लाइन. ओके, तो आपका ये जो थर्ड बजट लाइन है ये है 1 2 3 4. तो थर्ड बजट लाइन पे आपकी टेंजेंसी आ रही है बिटवीन योर आईसी एंड बजट लाइन. सो दिस रिप्रेजेंट्स योर इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम क्या है? स्लोप ऑफ आईसी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. नाउ इन केस ऑफ प्रोड्यूसर थियरी you have cost minimization given level of output. कि आपके पास एक आउटपुट गिवन है कि आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है. अब आपको डिसाइड करना है कि आप 100 यूनिट्स मिनिमम कॉस्ट में प्रोड्यूस करें. ओके, सो यू हैव बीन गिवन level of output. Now you have to choose
योर कॉस्ट पैटर्न, ओके, कि आपको अपनी कॉस्ट जो है मिनिमाइज करनी है। ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट आइसो कॉस्ट लाइन है। तो ऑन द थर्ड वन यू आर गेटिंग द टेंजेंसी पॉइंट, ओके, दिस इज योर इक्विलिब्रियम वेयर स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट इक्वल्स टू ये स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। तो आपको ये मिला होगा, चाहे आपको एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करना हो या आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना हो, दोनों ही केस में आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम रहती है, ओके। एंड सिमिलरली इन अ प्रोड्यूसर थियरी आपको चाहे कॉस्ट मिनिमाइज करना हो या फिर आपको आउटपुट मैक्सिमाइज करना हो, इक्विलिब्रियम सिचुएशन सेम रहती है। और इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होती है? टेंजेंसी बिटवीन योर आइसो कॉस्ट लाइन एंड योर isocont, and in case of utility function you have tangency between your indifference curve and your budget function, budget line, okay। एट इक्विलिब्रियम फर्स्ट इन केस ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन आपको क्या मिलता है? ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स एंड वाई, optimum quantities of good x and y that will give you maximum utility, that is x star and y star। इस सिनेरियो में जो आपको x स्टार एंड y स्टार मिलेंगे वो होंगे मार्शलियन डिमांड फंक्शंस। Here your x is a function of price of x, price of y and money income, okay। Similarly y किसका फंक्शन है? Price of x, price of y and your money income, okay। क्योंकि इस सिनेरियो में आप क्या कर रहे हो? आपकी मनी इनकम कांस्टेंट रख रहे हो, मनी इनकम कांस्टेंट। इन द सेकंड वन, इन दिस सिनेरियो जो आपको डिमांड फंक्शंस मिलेंगे by satisfying the equilibrium condition वो होंगे xc and yc, which is a function of price of x, price of y and your level of utility और real income। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? u कांस्टेंट रख रहे हो, आपका इंडिफरेंस कर्व गिवन है, आपकी लेवल ऑफ यूटिलिटी कांस्टेंट है, ओके। एंड सिमिलरली y प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y एंड लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो इस केस में जो आपको डिमांड फंक्शन मिलेंगे वो होते हैं हिक्सियन डिमांड फंक्शंस, हिक्सियन डिमांड फंक्शन और द कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन, ओके। यानी यहाँ पे जो डिमांड फंक्शन थे वो है मार्शलियन डिमांड फंक्शन, द ऑप्टिमम क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स एंड वाई, एक्स स्टार एंड वाई स्टार। इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों की सेम है, ओके। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ आउटपुट मैक्सिमाइजेशन जो आपको एल स्टार एंड वाई स्टार मिलेंगे, optimum quantities of labor and capital that will give you the maximum output, they are a function of w r and c, okay, because यहाँ पे क्या है? कॉस्ट कांस्टेंट है, गिवन है, ओके। सिमिलरली आपका k किसका फंक्शन है? w r and c, ओके। एंड इन केस ऑफ कॉस्ट मिनिमाइजेशन जो आपको एल स्टार एंड वाई स्टार, सॉरी एल स्टार एंड के स्टार मिलेंगे, ये एल सी एंड के सी। इन दिस केस योर एल सी इज अ फंक्शन ऑफ w r एंड q, ओके। यहाँ पे ये q गिवन है कांस्टेंट, ओके। सो इसे बोलते हैं कंटिंजेंट डिमांड फंक्शन। सो इन केस ऑफ कंटिंजेंट डिमांड फंक्शन आपका आउटपुट गिवन होता है, ओके। इन केस ऑफ नॉर्मल डिमांड फंक्शंस आपका कॉस्ट गिवन होता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, we are done with this video. I have covered all the topics, all the important comparison between the two. I hope आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये। Thank you so much for watching our content. If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel. And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section. And you can also join us on our Telegram channel where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.